So we've discussed states for aldehydes and ketones. Now we'll discuss the boiling point. Okay, so one thing we should know about boiling point is that boiling point of any compound is directly proportional to the intermolecular forces of attraction acting between them. Intermolecular force of attraction. So if so let's take an example of alcohol, right? Alcohol has hydrogen bonding between its atoms, right? ROH and then R4H. So there is hydrogen bonding between its atoms. So therefore, the boiling point for an alcohol would be high. If we take an example for aldehyde or ketone, which type of bonding does aldehyde and ketone have? Yes, dipole-dipole interaction. So we know that dipole-dipole interaction forces are less than hydrogen bonding forces. Therefore, the boiling point for aldehydes and ketones would be less as compared to alcohol. Now, if we come for the case of alkanes, alkanes have the weak van der Waals forces. Weak van der Waals forces, right? So because it is non-polar in nature, so therefore it has weak forces, and that is why the boiling point for alkanes is the lowest. Aldehydes and ketones have they're in the middle, and alcohols have the highest. If we try to compare aldehydes and ketones, we've seen, this is a general case, alright? We see that the charge dispersal, right, is more in case of a ketone. While if we see for an aldehyde, the charge dispersal is relatively less. Obviously, this is producing plus I effect, so it's able to balance this charge. So we say that this has a higher boiling point, but this is a very general case. It does not usually happen. It does not always happen this way, so we won't generalize. All right. So we've covered boiling point. Now we'll come to solubility. So for solubility, we come to know that lower aldehydes and ketones, right? They can form an intermolecular hydrogen bonding with the water, right? So HOH, this is water, and this is your aldehyde. So these two can form a hydrogen bonding. So the lower aldehydes and ketones would form a hydrogen bond with water. So that is why they are soluble. If we talk about the higher aldehydes and ketones, the thing with them is that their compound size is too huge, right? If you have something like this, so there is a lot of steric hindrance in this compound. So how would it actually combine with the water? This thing does not happen. So this does not really form a strong hydrogen bond that it can help in the boiling point. So therefore, they can help in the solubility. So therefore, the solubility for higher aldehydes and ketones is negligible. Just the lower aldehydes and ketones are highly soluble. All right. Okay. So now we've seen all the physical properties for aldehydes and ketones. Now we'll go through the chemical properties. So I've listed them out. We'll go through them one by one. All right. So the first one is nucleophilic addition. So I think first of all we need to realize what is a nucleophile. Okay. Nucleophile is any species which has excess of electrons, or it can donate electrons. मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किसी ऐसी स्पीशीज को दे सकते हैं जिसके पास नहीं हो. वो क्या हो गई? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके पास कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की, और ये एक्सेप्ट कर सकता है. दिस इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि तो हमें पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. सिंपली जो दे रहा है वो न्यूक्लियोफाइल हो गया, जो लेना चाहता है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया. ठीक है. तो अगर हमें करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हैं मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारे पास.
हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो लेट्स सी कि इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। दिस इज आवर जनरल केस, ये यहाँ पे कार्बोनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये दिस हैज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी टुवर्ड्स इट, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, मतलब इस पे डेल्टा नेगेटिव हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव हो गया। डेल्टा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एग्जैक्टली डेफिशिएंसी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बना हुआ है बॉन्ड, बट क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया है इसलिए हम हल्की फुल्की डेफिशिएंसी कह सकते हैं। तो इसका अगर हम एक और स्ट्रक्चर बना दें रेजोनेंस, तो इट कैन बी लाइक दिस, राइट। इस पे पॉजिटिव आ गया। अब इसमें हमें दिख गया पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम क्या चाहेंगे कि इस पे कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, समथिंग विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो विल टेक अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये आएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये देखिएगा अरे इससे पॉजिटिव है, इट विल अटैक और ये बन जाएगा O- और Nu। और अब क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो गई, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यू टू रिमेंबर दैट बोथ E+ एंड Nu- आर देयर, Nu-, पर हम ऑब्वियसली पहले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हैं। ये E+ आ गया, ये चला जाएगा इस पे, तो बस ये बन गया। तो इनफैक्ट जितनी भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे उन सब में यही प्रोसेस है। हमें ढूंढना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, क्योंकि हम कार्बोनाइल का कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल तो यही होगा, और हमें आइडेंटिफाई करना है इन सब में से कि इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज HCN, ठीक है। हाँ, तो हमें पता है हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, अब लेना है हमें न्यूक्लियोफाइल। दिस इज एन एसिड, तो हम इसको ले लेंगे H+Cn-, ठीक है। ये H+ हो गया, Cn- हो गया। अब हमें दिखने लगा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ये दिख रहा है हमें न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ हमें दिख रहा है ये डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या करेगा, ये जाके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। सो दिस वुड बिकम O, इसका चार्ज ये शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, दिस वुड बिकम O- एंड Cn, ठीक है। तो देखिए बन गया। फिर हमें दिख रहा है ये OH, ये H भी यहाँ पे रह गया तो ये इस पे अटैक कर देगा, H+ आके OH Cn, बस बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनाइड ग्रुप है और हाइड्रिन ये वाला ग्रुप है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो बस हमने आइडेंटिफाई कर लिया न्यूक्लियोफाइल कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, रिएक्शन करा दिया हमसे, हो गया। अब इफ़ यू रिमेंबर कल भी हमने ऐसी एक रिएक्शन की थी, इनफैक्ट इसीलिए मैं मेंशन करती हूँ कंफ्यूजन ना हो। Yesterday we did a reaction of Grignard reagent which is RMgX with RCN, साइनाइड की हम कर रहे थे ना कि साइनाइड से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो हमने ये वाली रिएक्शन की थी। इसमें हम R की जगह H भी ले सकते हैं तो HCN। तब हम ये नहीं सोच सकते कि इसको हम बना दें H+, इसको Cn- फिर इसके साथ कर दें, नहीं। इस केस में वी हैव टू कंसिडर कि ये एक कंपाउंड है, ये H+ Cn- में नहीं टूटेगा, तो ये पूरा साथ ही रहेगा, तब इसकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज दिस केस विद दिस केस। इनफैक्ट इन ओनली दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केस ये साथ रहता है, अदरवाइज HCN अपना अलग अलग होके टूट जाता है। इसमें तो ऐसा हो रहा था ना कि वो Cn ही जाके कनेक्ट हो रहा था, RCN बन रहा था, RCNH, है ना। तो दिस इज एन एक्सेप्शन विच वी स्टडीड लास्ट लेक्चर में, ऑलराइट। तो हमने देख लिया बस साइनाइड की तो सिंपल सी रिएक्शन है। अब हमने यहाँ तक तो बना लिया था साइनोहाइड्रिन तक, इसमें हम बस पानी डाल देते हैं, पानी तो हम आराम से डालते रहते हैं,
तो बस ये पानी डाल दिया, साइनाइड क्या बन जाएगा, एसिड। तो दिस बिकम COOH। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल सिंपल सा। ये H ले लेते हैं, ये क्या लोगे, CH3 ले लो। ठीक है, इसमें हमने HCl मिलाया तो क्या हुआ, ये HCl यहाँ पे अटैक कर देगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा। मेकिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली आप एक एक प्रोसेस करके भी कर सकते हो। CH3 इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब पानी डाल दिया, तो ये बन जाएगा OH H COOH CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। इनफैक्ट इसको यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो हमारे एग्जाम्पल के साथ हमें एक न्यू चीज़ पता चल गई कि लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, OH H COOH CH3। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट HCl, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल उनको मिलाया और बस हमारा आराम से होता है। सो वी डिस्कस फॉर HCl, नाउ विल डिस्कस फॉर NaHSO3। NaHSO3 इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फ्यूरस। सोडियम हटा दो, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू मेक इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, किसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स व्हाट वी विल सी। अब ये सब हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, तो अब तक तो आपको ये चीज़ पता होगी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हो गया H2SO3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, NaHSO3। तो बस सिंपली एक H हटा के ये लगा दिया, तो अब क्या मिल गया, वी फाउंड अ न्यूक्लियोफाइल। और नाउ वी कैन सिंपली रिएक्ट इट विद एन एल्डिहाइड और कीटोन। कि इलेक्ट्रोफाइल तो वी ऑलरेडी हैव, एंड अब तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, SO2 माइनस Na प्लस H के साथ, है ना, OSO2 H और Na प्लस। ठीक है, वी जस्ट रिटन इट लाइक दैट, ताकि हमें पता चलता रहे कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो O माइनस SO2 H, राइट। अब इसको ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस पे, so this would become O minus this OSO2H. Now we know कि this is an acid. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, ये वाला बचा हुआ। We know that this is an acid. तो acid की क्या प्रॉपर्टी होती है, acid is something which gives H plus and base is something which gives OH minus या फिर एक्सेप्ट H प्लस। ठीक है, तो अब बेस है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये एसिड है SO3H, तो ये अपना H इसको दे देगा और Na यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो दिस वुड बिकम OH, ये अपना एल्डिहाइड चल ही रहा है आराम से, OSO2 माइनस Na प्लस। तो ये हमारा बन गया फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट which we obtain. Stop. Okay, so this product which is formed is called bisulfate. सल्फेट क्यों, 8 क्यों आ गए, क्योंकि ये सॉल्ट बन गई है, bisulfate addition product, है ना। इनफैक्ट इसकी there are a lot of useful properties. एक तो खैर सिंपली है कि दिस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, दिस इज वाटर सॉल्यूबल, और कुछ जो हमारी इंटरेस्टिंग आती हैं,
Those are कि this is helps in protection of carbonyl groups. वो देखते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे होता है, राइट. We'll see that. So first we'll see, एक होता है इसका रीजनरेशन. We'll mention here as well. इसकी प्रॉपर्टीज में रीजनरेशन. ठीक है, हमारा क्या कंपाउंड बन गया था यहाँ पर OXO3 माइनस Na+ और यहाँ पर OH था. ठीक है, इसमें अगर हम सिंपली पानी डाल दें, मतलब इसको हाइड्रोलाइज कर दें, तो व्हाट हैपेंस इज ये बन जाएगा OH, और ऑब्वियसली दो OH तो एग्जिस्ट करते नहीं है साथ में, तो ये बन जाएगा कीटोन. यहाँ से पानी हट जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम एन एल्डिहाइड या कीटोन एंड फाइनली हम इस पे वापस आ गए. तो इस चीज को we've used as a lot of other cases. जैसे अब प्रोटेक्शन वाली चीज ही बताती हूँ कि ये प्रोटेक्ट कैसे करता है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स को. टेक एन एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया कीटोन, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एसिडिक ग्रुप. ठीक है, अब हमें पता है कि LiAlH4 क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, LiAlH4. तो अगर हम सिंपली डाल दें तो क्या करेगा, एसिड को वो रिड्यूस करके अल्कोहल में कर देगा एंड कीटोन को रिड्यूस करके भी अल्कोहल में कर देगा. बट इफ यू वांट अ केस जिसमें सिर्फ एसिड रिड्यूसेस टू अल्कोहल एंड कीटोन रिमेन्स एज इट इज, तो हम क्या यूज कर लेंगे, NaHSO3. तो हम पहले यूज कर लेंगे NaHSO3, फिर क्या करेगा, ये वाला कंपाउंड बना लेगा. उसके बाद हम इसमें LiAlH4, इसके बाद में हम LiAlH4 डालेंगे, तो इस पे तो कुछ कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि इसने प्रोटेक्ट कर रखा है, इस पे तो कोई एक्शन होगा नहीं. दिस रिड्यूसेस टू एन अल्कोहल, COOH की जगह CH2OH बन जाएगा. ये बन गया, उसके बाद हम अपना सिंपली पानी डाल देंगे, तो दिस वुड फाइनली बिकम दिस. तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोटेक्ट हो गया, द कार्बोनाइल कंपाउंड हैज बीन प्रोटेक्टेड. हमारा फाइनल प्रोडक्ट would be something like this. So this is actually protected our carbonyl compound. तो बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट जो होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. It is crystalline in nature, it is water soluble, it helps in the regeneration and protection of the carbonyl compound.